Let's start. Hello and welcome again to our official YouTube channel. This is today will be the third part of our plus one commerce series on basis of accounting, and those I'm repeating again, those who haven't watched the videos yet, the first and second part, first please go and watch that video, and then uh, today we will cover some other theory definitions, some other theory parts. So what we already discussed in the last two videos. The first one was uh, related to the accounting. It's just I haven't explained, haven't told you, I haven't given you any definition in the first part. It's just a introduction to accounting. What is accounting? Why we need it? Who needed it? Right. So in the second lecture, we covered the definitions of accounting by giving some references. So my advice to the students, that those who are watching that videos, always start the videos from the lecture one, from the part one, because this is the starting phase of your accounting career. So you need to be perfect in every aspect point of view, right? So when I talk about accounting, so you need to understand it by concept wise, not just read the books. Okay, this author says accounting is this, accounting is this. Because if you are looking accounting as your mission and vision, you must understand accounting by its origin and to the advanced level, right? So today we are going to cover the objectives and characteristics of accounting, and if we will see after these two topics, if we get the time, then we will discuss the limitations as well. And after one or two lectures, one or two videos, we will start learning the format of the journal entries. We will learn about the rules of accounting, journal entries, then cash book. So stay touch and keep watching the videos, and I'm repeating again, please watch from the beginning. It's just like a film, right? If you watch from the middle of the movie, though, you will not understand what's happening here. Okay, so my suggestion is to watch the videos from the lecture one. I will keep uploading the videos, as I told yesterday, that I will upload videos once a day, and when I feel that the video should be uploaded twice a day, then I will do that accordingly. But for now, I'm uploading the videos single day, in a single day. So let's start, and the objectives of accounting. So in the last video yesterday, we discussed the definition of accounting by the American Institute of Certified Public Accountants, right? And the other one as well, American the other one as well, the American Accounting Association, right? So let's start. Today what we are going to discuss is the objectives of accounting. As I think I have already explained this in the first intro round, why we need this accounting, why we need to maintain accounting, what is the purpose of accounting, objectives of accounting. So this I have
explained this in the first video, but now I will tell you what in detail, right? Why we need it is just a common intro round, but this was today we will discuss in detail objectives accounting. So you guys already know why we need accounting. Why we need accounting? If you are running a business, so you are dealing with the daily transactions in a large quantity, right? So you need a person who can look after all this transaction and who can record this transaction, classify accordingly, and summarize accordingly. This was done to ensure that we are our business is growing in a perfect way, perfect position. And what is the position of our business? Should we continue this business or not? Are we not suffering the losses every month? So so all these records should be maintained, and this process is called accounting. But why we need it? That's simple. हमें अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है? सबसे पहली जरूरत, टू मेंटेन ए systematic record of business transaction. The first one is to maintain a systematic record of a business transaction. Second, to ascertain profit and loss. To determine financial position. To assist the management. To provide information to various users. Right? So these are the 5 main objectives of accounting. So I think I don't need to explain each and everything, because I have already done this in a very simple language. This is the official language. You can say that this language should be used in the in your exam. You write down these 5 main headings, and in the subheading, in the detail, you can write anything which we discussed in the first intro lecture, right? So why we need accounting? Objectives of accounting. The first one is obviously a very simple and straight question. To maintain a systematic record of business transaction. I am running a business. मैं एक business चला रहा हूँ. For example, I am running a business of clothes, ready-made clothes, right? Jeans, shirts, t-shirts, lowers, all these, right? So the first thing, मैं इनको खरीद के ला रहा हूँ कहीं से. The first thing I will do कि मैं किसी से खरीद के ला रहा हूँ, उसका मेरे पास बिल्स है. फिर और डेली मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं. एक दिन में 40 कस्टमर आ रहे हैं, 50 कस्टमर आ रहे हैं, तो डेली उनको सेल हो रही है. किसी को 700, किसी को 800, किसी को 23, किसी को 2500 की, किसी को 3000 की. तो वी आर डीलिंग विद द डेली ट्रांजेक्शन. तो मेरे डेली ट्रांजेक्शन बहुत है. इसके अलावा और खर्चे हैं. मैंने अपने स्टाफ को
स्टाफ पे कोई खर्चा कर रहा हूँ, स्टाफ को मैं कोई स्नैक्स वगैरह दे रहा हूँ ड्यूरिंग द डे, उनको कोई जैसे टी या कोई अदर स्नैक्स दे रहा हूँ, तो ऑल दिस एक्सपेंसेस, मेरा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, या आप कह लो कोई और मेंटेनेंस के खर्चे हैं, तो ऑल दीज एक्सपेंसेस, जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं, इनको मुझे रिकॉर्ड रखना है, और इनका रिकॉर्ड रखना, और इन ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करना है। अब पूरे मंथ में मान फॉर एग्जाम्पल मैं जितनी भी मेरे पूरे मंथ में मेरे को ट्रांजेक्शन हुई, मैं उनका रिकॉर्ड ना रखूं फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे पास मान लो फॉर एग्जाम्पल एवरेज एक दिन में 50 कस्टमर आते हैं, तो प्रोबेबली 1500 कस्टमर हो गए मंथली, एग्जाम्पल ले रहे हैं एग्जाम्पल। तो अगर मैं 1500 कस्टमर आ रहा हूं, मेरे पास 1500 बिल हो गए, कहने का मतलब 1500 इनवॉइस, तो इन 1500 इनवॉइस को से मुझे मैं कैसे कैलकुलेट करूं कि मुझे मेरी कितनी सेल हुई है? क्या मैं उनको टोटल करना बैठूं 1500 के एक, फिर तो प्रोबेबली मेरे बहुत टाइम लग जाएगा, फिर मैं कस्टमर देखूंगा या उनको देखूंगा। सो आई नीड ए पर्सन कॉल्ड अकाउंटेंट। आई विल हायर अकाउंटेंट, वो सारी ट्रांजेक्शन्स को डे बाय डे रिकॉर्ड करता जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग की जरूरत हमें क्यों पड़ी? ताकि मेरा जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं बिजनेस रिलेटेड, ये बात मैं कल भी बताई थी, आज बता रहा हूं, बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो मेरी हो रही हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को, जो बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो रही हैं, ओनली दोज ट्रांजेक्शन बिजनेस रिलेटेड और सिस्टमैटिक, किसी सिस्टम में, राइट। सो फर्स्ट थिंग क्या है कि आपने एक रिकॉर्ड रखना है, मेंटेन ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, सिस्टम में रिकॉर्ड रखोगे। ऐसा नहीं है कि आज का मान लो आपने कोई ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड तो कर रहे हो, बट किसी सिस्टम में रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे, कोई तरीका ही नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं अडॉप्ट करा हुआ, इनकम को कहीं और डाल रहे हो, एक्सपेंस को कहीं और डाल रहे हो, कोई सिस्टम। सो वो सिस्टम हम इन नेक्स्ट वीडियो में we will learn about all about this, right? So the first is why we need accounting to, ताकि हम अपने ट्रांजेक्शन का डेली रिकॉर्ड रख सकें, उसके रिकॉर्ड रख सकें। रिकॉर्ड रखने का मतलब है उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, एंड उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो भी कोई भी डॉक्यूमेंट होगा, चाहे वो इनवॉइस है या कुछ भी है, राइट, तो उन सभी चीजों को का रिकॉर्ड रखना। मान लो मेरे डेली के मेरा स्टाफ कहीं डिलीवरी देने जा रहा है, तो उसका पेट्रोल का एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो पेट्रोल एक्सपेंसेस, वो पेट्रोल डलवा रहा है 300 का, 400 का, 500 का। सो व्हाट ही विल डू कि मैं अकाउंटेंट उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर देगा 300 400, बट उसका एक प्रूफ भी चाहिए, तो ही विल ऑब्टेन ए स्लिप फ्रॉम द पेट्रोल पंप। सो पेट्रोल स्लिप क्या है, उसका एक प्रूफ है। सो सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है और उन ट्रांजेक्शन का प्रूफ भी रखना है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दिस। सेकंड, टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस, वेरी स्ट्रेट एंड सिंपल। अकाउंटिंग हम रख तो रहे हैं, ठीक है, अब इनकी वाई वी मेंटेन ऑल दिस, हम इतना खर्चा क्यों करें? भाई मेरा बिजनेस बड़े लेवल पे है, और मुझे मैं कैसे मंथ, अगर मैं अकाउंट को मेंटेन ना करूं, if I don't maintain the accounting, then how will I get to know that my business is in a loss position or profit position? After suppose you will calculate an estimate of all your sales कि मेरे को 2 लाख की महीने की सेल हुई, उसमें से मेरा इतनी परचेज हुई, ठीक है, you can calculate a estimate, but this not be a 100% sure, right? So when you maintain accounting and you maintain an accountant, and at the end of the month, even not at the end of the month, even you can check your business position anytime during the month, during the day, during the week, during the year. So मैंने 15 तारीख को पूछ सकता हूं कि मेरे बिजनेस का कितना आज की तारीख में क्या पोजीशन चल रही है,
माई अकाउंटेंट विल से ओके आपको 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है आज की डेट में। ओके, आफ्टर 3 डेज 18 तारीख को मैं फिर पूछ लूँ कितना प्रॉफिट चल रहा है। हाँ, आपका 50,000 का उस दिन था, आज 70,000 हो गया। सो प्रॉफिट लॉस को अब प्रॉफिट लॉस जब मुझे पता चलना शुरू हो जाएगा, व्हेन आई गेट टू नो अबाउट माय बिजनेस पोजीशन, वेदर माय बिजनेस इज गोइंग इन ए प्रॉफिट पोजीशन और लॉस पोजीशन, देन डेफिनेटली आई कैन मेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। मैं उस अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकता हूं कि आखिर मुझे क्या करना है। डिसीजन मीन्स मुझे और क्वांटिटी खरीदनी है या और कम क्वांटिटी खरीदनी, ज्यादा क्वांटिटी खरीदनी है या कम क्वांटिटी, कौन सी चीज मेरी ज्यादा बिक रही है। अब ऑब्वियसली जब सेल रिकॉर्ड हो रही है तो सेल में मेरे पास ऑब्वियसली पता चलेगा कि मेरे सबसे ज्यादा चीजें क्या बिक रही हैं, जीन्स बिक रही हैं, टी शर्ट्स बिक रही हैं, क्या बिक रहा है। देन आई कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली कि मुझे आगे का क्या डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, तो वेरी क्लियर टू सर्टन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। To determine financial position, as I told you, to calculate a profit and loss, to maintain a systematic record, right? And to determine financial position, right? फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि मेरे बिजनेस की पोजीशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट राइट नाउ, मेरे बिजनेस की पोजीशन। और भी बहुत फैक्टर्स हैं, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो अकाउंटिंग के बेस पे मैं ये डिसाइड कर सकता हूं कि आगे मुझे क्या करना है। ये तो जस्ट एक एग्जांपल थी कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है 50,000 70,000। अब प्रॉफिट तो हो रहा है, अब उसमें जो मेरी सेल है, सेल में मैं चेक करूंगा कि मेरे मान लो आई एम सेलिंग 4 कैटेगरी ऑफ क्लोथ, जीन्स, टी शर्ट्स, लोअर्स, शर्ट्स। देन आई कैन चेक एवरी आफ्टर ए मंथ कि मेरी कौन सी सेल ज्यादा हो रही है और खर्चे कहाँ ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो और चीज फाइनेंशियल पोजीशन इसी से पता चलेगी। इफ यू मेंटेन अकाउंटिंग, इफ यू डोंट मेंटेन अकाउंटिंग देन इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। तो इसमें भी यही लिखा हुआ है, another objective is to determine financial position of the business, to check various assets and liability for to prepare balance sheet। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन में ये भी हो सकता है कि आपकी बैलेंस शीट पे मैंने लोगों को कितने पैसे देने हैं और लोगों से कितने पैसे लेने हैं। तो ये सारी चीजें अभी आपको बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में इतना नहीं पता होगा। एज आई टोल्ड इन द लास्ट वीडियो यस्टरडे दैट टू मेनली 2 टाइप की रिपोर्ट बनती है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, बट there are other reports as well, but for now just assume profit and loss to calculate my business profit। and balance sheet होती है कि मैंने लोगों के कितने पैसे देने हैं, लोगों से कितने पैसे लेने हैं, मेरे पास कितना कैश है, मेरे बैंक में कितना पैसा पड़ा है, मेरा स्टॉक कितना पड़ा। दिस इज ऑल रिलेटेड टू द बैलेंस शीट, राइट। सो ये सारी चीजें जब आप बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस है तो आप देख लोगे कि मेरी प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है, या इस पॉइंट को आप ये भी बोल सकते हो टू, इस पॉइंट को जैसे आपने बोला टू अ सर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस पॉइंट को बोल सकते हो आप टू अ सर्टेन बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में यू कैन चेक द 2 साइड्स होती हैं बैलेंस शीट्स की, तो इसमें 2 साइड्स होती है बैलेंस शीट की, वन इज एसेट साइड, वन इज लाइबिलिटी साइड। अब आपको ये चीज अभी नहीं पता चलेगी कि एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, और ये दोनों मेरी इक्वल होती हैं। एसेट में मेरे पास बैंक है, मेरा कैश, इधर मेरी लाइबिलिटीज हो गई जो मेरी देनदारियां हैं। लाइबिलिटी मीन्स देनदारियां, एसेट्स मीन्स जो मेरे पास चीजें हैं या होने वाली हैं। लाइबिलिटी मीन्स जो मैंने चीजों को जो मैंने पे करना है, देनदारियां, राइट। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बिजनेस की जितने भी एसेट्स हैं, एसेट मतलब मेरे पास कितना पैसा है, मेरे पास कितना बैंक बैलेंस है, मेरे पास कितनी इन्वेंट्री है, तो ऑल दिस विल बी कंसिडर फाइनेंशियल पोजीशन, राइट। देन द 4th पॉइंट इज टू असिस्ट द मैनेजमेंट। ऑब्वियसली ये सारे पॉइंट ना इंटररिलेटेड है आपके। अगर मैं एक ही बात कर रहा हूं तो उसका मतलब भी वही है, उसका मतलब भी वही है, उसका मतलब भी वही है। ऑब्वियसली अब टू असिस्ट द मैनेजमेंट को असिस्ट करना। मैनेजमेंट ने मान लो कोई डिसीजन लेना, मैनेजमेंट मीन्स ओनर,
ओनर या जो भी उस ओनर के साथ जो उनकी मैनेजमेंट है, टीम है ओनर की, राइट। अब मैनेजमेंट को असिस्ट कैसे करेंगे? अगर अकाउंटेंट ने, इफ यू हैव hired a accountant and you are maintaining accounting, then accountant जब भी मेरी रिक्वायरमेंट होगी, मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, जब भी मुझे रिक्वायरमेंट होगी, मान लो मैंने बैंक से लोन लेना है, तो बैंक मेरी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस मांग रहा है, तो मैं अकाउंटेंट, अगर मैं अकाउंटिंग मेंटेन करके रखी होगी, देन ही कैन इजिली प्रोवाइड मी द रिपोर्ट्स अकॉर्डिंगली, राइट। लोन लेना है या कोई किसी से मैंने ज्यादा क्वांटिटी में माल खरीदना है, तो ऑब्वियसली उसको डर होगा कि ये पैसे देगा भी नहीं देगा, क्रेडिट पे माल खरीद रहा हूं, तो ही विल चेक माय फाइनेंशियल पोजीशन। सो whenever I feel a requirement, when the management or business owners feel requirement that I need some reports to get some loans, etc. Yeah, loans is just example to ascertain the effectiveness of the business, right? So उनको प्रोवाइड कर सकते हैं हम रिपोर्ट। लास्ट वन, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स। अब यहां पर वर्ड आ रहा है यूजर्स। यूजर्स दो तरह के होते हैं, इंटरनल, ये एक्सटर्नल। इंटरनल, एक्सटर्नल, राइट। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर, इंटरनल, एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर्स कौन से होते हैं? इंटरनल यूजर मतलब मैं ओनर, मेरी टीम, मेरे एम्प्लॉय, मेरा अकाउंटेंट, कोई भी बंदा, ये सारे यूजर्स कौन है? यूजर मतलब कि जो मैं अकाउंटिंग मेंटेन कर रहा है, सारा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा हुआ है, इस इंफॉर्मेशन का यूज इंटरनली कौन कौन कर सकता है, मतलब किस किस को रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो मेरे को रिक्वायरमेंट है, आई एम द ओनर, मेरे अकाउंटेंट को रिक्वायरमेंट है, मतलब यूजर किसको किसके लिए वो यूजफुल है इंफॉर्मेशन। तो मेरे इंटरनली मेरे आई एम, इट्स यूजफुल फॉर मी एज ए ओनर, इट्स यूजफुल फॉर माई अकाउंटेंट, इट्स यूजफुल फॉर माई एम्प्लॉयज, राइट। सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स, इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या हो गया? बैंक्स आ गए, बैंक्स आ गए, या आपके जिनसे आप डेली का आपने मटेरियल का लेन देन कर रहे हो, फॉर यू, जिससे आप माल खरीद रहे हो, बेच रहे हो, वो यूजर्स हो गए। या कोई इन्वेस्टर्स हैं जो आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता है, राइट। तो आप कहता है कि मैं आपके बिजनेस में हिस्सा डालना चाहता हूं, बट आई नीड टू चेक योर बिजनेस पोजीशन फर्स्ट, राइट। सो ऑल टू प्रोवाइड, तो ये हम एक सेपरेट टॉपिक में भी स्टडी करेंगे। So these are the objectives of accounting, right? So first is to maintain a systematic record of business transaction. Systematic, एक सिस्टम में business related transaction, no personal transactions are allowed. To certain profit and loss, ताकि मेरे को अपनी बिजनेस की का प्रॉफिट लॉस पता चल सके। टू असर्टन द बैलेंस शीट, या टू डिटरमिन द फाइनेंशियल पोजीशन, कि मेरी बैलेंस शीट किस पोजीशन पे खड़ी है। मेरा प्रॉफिट तो मुझे पता चल गया है, बैलेंस शीट मैंने लोगों को कितने पैसे देने हैं, कौन लोग कितने देने हैं, मेरा कैश कितना चल रहा है, मेरा बैंक बैलेंस कितना है, मेरा इन्वेंट्री कितना है, ऑल दिस विल बी फाइनेंशियल पोजीशन। मैनेजमेंट को असिस्ट करना, मैनेजमेंट मीन्स आई एम द ओनर, तो मेरे को असिस्ट करना when I feel requirement that I need to check the business reports for any purpose, so obviously accounting can provide me the reports if I'll maintain it accordingly, and to the various users, internal or external। internal employees हो गए आपके, owners हो गए, या और स्टाफ हो गया आपका, एंड एक्सटर्नल में आपके पास आ जाएंगे बैंक्स आ गए आपके, या जिनसे आप लेन देन कर रहे हो, और उन लोगों को आपकी क्यों चाहिए, जो बिकॉज दे हैव इंटरेस्ट इन योर बिजनेस, वो आपको माल दे रहे हैं उधार। मैंने किसी से 2 लाख का माल खरीदा, जिसको मैं बोल रहा हूँ कि मैं मेरे से 50,000 तो ले लो, बाकी 1.5 लाख मैं फिर दूंगा।
अरे वो 1.5 लाख वो तभी दे पाएगा इफ ही इफ ही नोज दैट इसकी बिजनेस पोजीशन बहुत अच्छी है, देन ओके, इसकी पोजीशन बहुत अच्छी है, प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा है, देन ओके आई एम रेडी टू गिव हिम ऑन क्रेडिट, मटेरियल ऑन क्रेडिट. So all good. These are the objectives of business. So this is all for the current time, and I will cover you the some other like topics, characteristics and limitation in the next video. And then I think there is a topic branch of accounting, concept of accounting, and I think concept of accounting, branch of accounting, limitation, and then we will start the practical part as well. Don't worry, it's not, इसमें बोर होने वाली कोई चीज नहीं है, बिकॉज माई ऑब्जेक्टिव, माई एम इज टू यू गाइज अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग वेल मेंटेन्ड. ये वही चीज है जैसे आप अगर फर्स्ट टाइम कार चला रहे हो ना, तो डेफिनेटली अगर आप डायरेक्ट आपको हाथ में कार पकड़ा दी जाए तो डेफिनेटली यू विल नॉट बी एबल टू रन इट प्रॉपरली, राइट. तो आप कहीं ना कहीं ठोक दोगे. तो ये जैसे आप अकाउंटिंग एक कार समझ लो, तो कार को समझ चलाने के लिए आपको मैं सारी चीजें बता रहा हूँ कि ऐसी ये चीज है, वैसी वो चीज है. अगर आप इस चीज को फॉलो नहीं करोगे देन आपको आगे कुछ समझ नहीं आएगा. एंड इफ यू रियली इंटरेस्टेड गोइंग फॉरवर्ड आफ्टर 12 कि मैंने बीकॉम करनी है, मैंने एक बड़े लेवल का कोई कोर्स करना है, राइट, किसी, तो you need definitely need to know the basics of accounting, right? So thank you, and in the next video we will cover the other topics as well. Thank you guys, thank you.